Here is that one more question. What you have discussed about that we have to develop the infrastructure and bring some educational university institution. Government also should take care of it. Yes. Fine, that's everything is fine. So that government will be take care of it. Otherwise, the people of Bihar, they will be take care of it, and then definitely one day they will be bring the revolution. They bring back to the again the what is the old that ancient time, like it's Chandragupta, Ashok, Nalanda University. yeah, Nalanda, Vikramshila. Yeah. That will be fine. But you know, it's very painful to listen that whenever I meet to the Biharis in other part of country, Delhi and Rajasthan, Bhubaneswar, I mean Odisha, Kota, Rajasthan, they are very hesitate to give the identity of the Bihari. Why such type of a shame to tell their own motherland? So many Bihari they hesitate to say, no, I am not Bihari. They go and settle in the what do you call it, Delhi, Kota, Rajasthan, and South India, Bangalore, Chennai, all they is declare that themselves as the South Indian, they declare themselves as the Delhi and Bhubaneswar and other part. Why such a shame? Even the most educated peoples, they do these things. Why there is such a shame to identify as a Bihari? Yes, very right question, Manoj sir. And Yes, sir. the answer to this question was obviously in line all the debates, all the arguments we have put forward, the Binaru state concept idea, or the educational backward area, or the economical backward state Bihar, the migrant labor. You see, in the past 30-20 years, Bihar and Bihari word has become a sort of, not slang I would say, but it's sort of kind of, a non-Bihari use to call a Bihari resident. And this personally I have also experienced when I was in my university days in Delhi in 2004 or 5, 8, till 10 or 12 when I was in my masters in Delhi University. The answer to this question is that the image, the Bihari identity which we are talking about, as Bengali had, Odia had, the Assami had, or Tamil, or for that matter any other state had, or the state the student or the population of living of that state is having. Bihari as such is not having an identity. हम किसको बिहारी कह रहे हैं? हमको उसके पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे बंगालियों का पूरे बंगाल में वो कहीं से भी बिलोंग कर सकता है, वो अपने आप को बंगाली कह सकता है। उड़ीसा से अगर आप हैं तो आप भुवनेश्वर से हैं कि पुरी से हैं, आप एक उड़िया हैं. You can tell me why? Because you see, historically every state has a language. बहुत सारे जो नॉन बिहारी मेरे मित्र हैं और जो अच्छे जानकार हैं इस चीज़ को समझते भी होंगे और एग्री करेंगे शायद, if I may not say so and if I am not wrong, पूरे बिहार में सर 4-5 भाषा है. एक भाषा जो होती है सर, वो एक आइडेंटिटी क्रिएट करती है. ये हमारा भारत का इतिहास है. भाषा के आधार पर पहला स्टेट हमारा बना था आंध्र प्रदेश आज़ादी के बाद. हम सब जानते हैं इस चीज़ को. और फिर तमिल तेलुगु का जो इशू है, या फिर हिंदी तेलुगु तमिल का जो इशू है. तो भाषा हमारे यहाँ एक संस्कृति, एक आइडेंटिटी डेवलप करती है, जो कि बिहार में आपको अगर बताऊं तो एज सच कोई बिहारी, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैथिली is the only language which is in 8th schedule from Bihar. But अब now come to the other aspect, भोजपुरी जो इतनी बड़ी संख्या में बोली जाती है, जिसके अलग फिर डिबेट्स हैं कि वो गंदी है, अच्छी है. लोक संस्कृति भी गाई जाती है. हमारी शारदा सिन्हा है जो बहुत फेमस है, उन्होंने हिंदी में भी फिल्मों में भी गाना गाया है, और बहुत सारी की बातें हैं. हमारी शादी में भी गाने, छठ के भी गाने भोजपुरी में अच्छे. बट भोजपुरी बोलने वाले करोड़ों लोग हैं, पर वो बिहारी अपने आप को वो भी बिहारी कहेंगे. भागलपुर क्षेत्र में हम बैठे हैं, यहाँ की वटिका भाषा है. आप सीमांचल साइड में जाएंगे तो वहाँ की अलग भाषा. छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में लैंग्वेज डायलेक्ट चेंज हो रहा है बिहार में. तो देयर इज नॉट सच ए बिहारी सो कॉल्ड आइडेंटिटी. तो गया वाला भी बिहारी है, दरभंगा वाला भी बिहारी है, पर दरभंगा वाला मैथिली में बोलेगा, गया वाला मगही में बोलेगा. सो देयर इज अ डिफरेंस इन दोस टू बिहारीज. सो विद इन बिहार देयर आर सो मच लैंग्वेज बैरियर्स. तो मुझे लगता है पर्सनली एक ये इशू है टेक्निकली बिहारी आइडेंटिटी को लेके. बिहारी खुद अपने आप में वो समझ रहा है कि मैं बिहारी कैसा बिहारी हूँ. नाउ कमिंग टू द व्हाई अदर हु आर नॉट बिहारी, एक दिल्ली वाला या एक बंगाली या एक अदर जो है वो क्यों बिहारी कैसे बोलता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण. नहीं, मेरा क्वेश्चन जो है बिहार, जब बिहारी बच्चे जो बाहर जाते वो नहीं बोलते, मैं उसी पे बिहार को बोलने एग्जैक्टली जो हम शर्म. हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि जो
बिहार में 15 साल जो एक डार्केस्ट फेज ऑफ पॉलिटिक्स देखा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसको बॉलीवुड ने भी दर्शाया है बहुत अच्छी तरह से। अभी रिसेंटली भी एक सीरीज आई है उस पर पुलिस वाली, जिसमें दिखाया गया है किस तरह से किडनैपिंग होती है और बहुत तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को दिखाया गया है। फॉरगेटिंग द सीरीज, वेब सीरीज नेम, वो नेटफ्लिक्स पे या कहीं तो अमेजोन पे है। खाकी द बिहार चैप्टर बहुत लोगों ने देखा होगा इसको। तो आप इसी समझ there is a dialogue in that which is very famous कि आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में, यू नो। सो यू सी, अब आप बताइए कि जहां एक बंगाली अपने आप को टैगोर से कनेक्ट कर रहा है, यू नो, जहां एक उड़िया वाला अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है, जहां आसामी अपने गमछा को प्रमोट कर रहा है, तमिलियन अपने आप को संगम लिटरेचर को प्रमोट कर रहा है, हमारे बिहार में हम कह रहे हैं आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में। आप समझ रहे हैं कि वो एक पढ़ा लिखा बिहारी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने जाएगा, तो वो जब इस तरह की बातों को सुनेगा तो वो किस डिग्निटी से कहेगा कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, यू नो। दीज इमेजेस ऑफ बीइंग बिहारी, तो बिहार हैज बीन, you know, the Bihari image has been, or identity has been changed to the poverty and is synonymous to, एक ऐसा हो गया है कि मतलब अगर बिहारी जो नॉन बिहारी है, अगर वो बिहारी सुनता है, बिहारी शब्द सुनते ही उसके इमेज में बंदूक आता है, गुंडागर्दी आता है, यू नो, गरीबी आता है, फिल्थ आता है, यू नो, करप्शन आता है, मारपीट आता है, यू नो। दिस इज व्हाई यू आर आस्किंग। इवन जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट भी अगर बाहर जा रहा है या कहीं जाता है तो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? यही तो, क्योंकि जो इमेज बनाया गया बिहार का, चाहे वो पॉलिटिशियंस की वजह से हो, जो मोरल लेस कोट एंड कोट ज्यादातर उन्हीं की वजह से है डेफिनेटली, तो उनको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है कि अच्छा हम उस बिहार से, हम ही वो बिहारी हैं जिसका इमेज ऐसा बाहर में है और लोग उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं। अगर ये चीज नहीं हुई होती, हमारे लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ होता, हमने वो डार्केस्ट फेज ऑफ पॉलिटिक्स जो 90s का था वो हमने नहीं देखा होता, बॉलीवुड में हमें उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया होता। Bollywood is another one. Bollywood is another one. Most of the if there is a murder to take place, if there is a side villains, then there is some murderer, then they will take some chakus and all the Biharis. I mean, they had the Bollywood or even the South Indian movies. They will take the when they bring some image against the Bihar. And they bring the people, but truly I am living in a Bihar. I didn't never seen such a way, but few people say that is what I am. But my question, sir, my first question was still is remain. Have you ever felt that you are not Bihari to not tell them before the Delhi as a Delhi students? Tell me the truly. Yeah, I'm honestly telling you, sir. I'm honestly telling you. You said why people are, and it has changed. In this era, it has changed. Till now I have been listening, sir. Okay. There is a guy who is viral, who is very viral, a Bihari guy who is saying मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ. There is a very viral reel going on. बहुत लोगों ने सुना होगा, मैं उसका नाम नहीं जानता, बट वो बच्चा भी बहुत वायरल हुआ है कि हाँ मैं बिहारी हूँ, ये गरीबी हूँ, सब कुछ है, पर फिर भी मैं बिहारी हूँ। सो यू नो दिस होल आइडेंटिटी क्राइसिस से निकलना पड़ेगा हमको। और ट्रस्ट मी सर, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ दिल पे हाथ रख के कि मैं 10 साल अपने दिल्ली में रहा अपनी पढ़ाई को लेके, यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम लेके। जब हम लोग रूम ढूंढते थे, हमारे जो दिल्ली के दोस्त हों अगर वो देखें कभी तो रियलाइज कोलेट करेंगे, हम जब रूम ढूंढते थे रेंट के लिए और हम पूछते थे ऊपर कि आंटी वो कमरा खाली है क्या, या रूम मिलेगा क्या, तो वो आंटी बोलती थी हाँ मिलेगा, खाली है, कहाँ से हो, तो हम कहते थे हम बिहार से हैं, हम बिहारी हैं। तो हम प्रोक्लेम, वो अलग बात है। यू सी सर, दो चीजें होती हैं, आप बिहारी को कैसे देख रहे हो ये आपकी थिंकिंग है, मैं बिहारी हूँ ये मेरी थिंकिंग है। तो मैंने आंटी को कहा कि मैं बिहारी हूँ, पर आंटी ने कहा हम बिहारियों को रूम नहीं देते। मैंने कहा थैंक यू आंटी, कोई बात नहीं है, हम कहीं और ले लेंगे। यू सी, सो उनके मन में बिहारियों का एक इंप्रेशन क्रिएटेड है कि वो गुंडे होंगे, मवाली होंगे, वो तो अलग चीज है, अलग चीज है। We cannot change that perception of others. Exactly. But basically, as a Bihari, you didn't change the perception. That's greatness. I still don't change. Yeah, but still, I tell you that conclude this topic actually. But you know, these peoples of Bihar, even the educated peoples, should not be ashamed. Never be ashamed to tell. Feel proud of Bihar. Yes. Always. And apart from that, we will be telling we are Indian. And also, sorry to interrupt you, sir. Also, we have discussed lots of
problems, and also, and why we just forget that yes, we have Nalanda, we have Rajendra Prasad, we have Champaran Satyagraha, we have Vikramshila over here, we have the only Vedic and natural festival Chhath Puja celebrating in Bihar. Many people worship idol, and Durga Puja has now got UNESCO cultural heritage tag. It's good. I respect all the culture of our country, but yes, we also have some sort of politic identity which somebody can say and somebody can talk also for that matter. But still there is some sort of things which we Biharis should feel proud of. Yes, for example, concludingly, I would conclude this. It's exactly for people who are outside from Bihar. They always say to me personally, hey you Bihari, यार तुम्हारे सारे बिहारी सब जगह भरे पड़े हैं, सब गरीब हैं, सब देखो सब ठेला वेला बेचते रहते हैं, ये तुम बिहारी कहीं भी चले जाते हो यार, हर जगह पड़े हो, भीख मांगते रहते हो, बेगस, like you know why? क्यों वो बंदा एक बार भी नहीं कहता कि हाँ तुम सारे आईएएस भी बिहारी होते हैं? क्यों वो एक बंदा क्यों नहीं कहता कि जेपी मूवमेंट ने इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दी थी? क्यों वो बंदा नहीं कहता कि बिहार से 12 रेल मंत्री हुए और आज भी राजनीति में अगर बिहार कहीं शिफ्ट करता है तो पूरे देश के आगे को सोचना पड़ जाता है? यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वी बिहारीज हैव मोर देन अ से जस्ट to be a laborer or worker hub to all over India. And even मैं तो कहता हूँ कि मुझे उस पर भी फक्र है कि मैं पूरे देश को लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो ठीक है, हम उस लायक हैं तभी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना. अगर हमारे पास गरीबी है तो वी आर सेलिब्रेटिंग आवर गरीबी, लेट इट बी. हम अहमदाबाद सूरत के कारखानों में अपने बिहारी भाई बहन को भेज रहे हैं कि आप वहां जाके काम करो और दिल्ली और नोएडा को बढ़ाओ. अब एनसीआर में नोएडा में जब मेट्रो का काम चलता है तो पूरे बिहारी वहां खटते हैं, काम करते हैं. Yes, sir. That's nice, sir. Very good, nice one. That's really the people should be proud in the positive aspects of Bihar, despite of negatively everywhere. Last but not the least, Manoj sir, just one line also, which is very much needed here in this good debate on Bihar and meeting and everything on Bihar. बिहार बदलेगा, लेकिन जैसे बिहार की समस्याओं के लिए सिर्फ राजनेता जिम्मेदार नहीं है, हम बिहारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं. तो बिहार तभी बदलेगा पॉलिटिकली जब पॉलिटिशियंस के अलावा, राजनेताओं के अलावा हम बिहारियों का भी कर्तव्य है. वो बिहारी जो बिहार से बाहर हैं, विदेशों तक हैं, जो आईएएस हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, और जो बिहार में भी हैं कहीं ना कहीं, वो भी हर जगह चर्चा करें, विमर्श करें अपने आसपास, और खासकर जो नॉन रेजिडेंट बिहारी बाहर रहते हैं उनको भी कहें कि वो इस इमेज को बदलने की कोशिश करें खुद पर्सनल लेवल पर. चेंज इज ओनली परमानेंट, और बदलाव होता है, बदलाव एक से नहीं होता है. तो हम सबको मिलकर कलेक्टिवली इस पर वर्क करना पड़ेगा. अगर बंगालियों के पास वो आइडेंटिटी है तो कोई एक दिन में नहीं आई, उनके लिए भी टैगोर और पता नहीं कितना लॉन्ग प्रोसेस होता है. जब नोबेल प्राइज मिल गया तो अचानक से उनकी भी आइडेंटिटी बहुत इंक्रीज हो गई. अभी ऑस्कर मिल गया साउथ इंडियन मूवीज को, तो देखो अभी उनकी भी आइडेंटिटी कितनी चेंज हो जाएगी. So they will also glorify it. So we need to also glorify, even if it's laborer and worker, we will glorify laborer and worker. Okay, fine. But we will also glorify our IAS officers. We will also glorify our politics. Nice, sir. Okay. Thank you so much, Manoj sir. Thank you, Manoj sir. Yeah. Okay, sir. Fine. And then will we go for the what I mean to say you, sir? What my motto is, our motto for all educated, this education system. I mean, we should bring the revolution. First of all, we start in our own place, then own district, own state, own country. First of all, within ourselves. Now, before that, all we should be within ourselves. Already you are across the university student, university to many places you worked, and came to the KV of Kendra Vidyalaya as a central school teacher. What type of again? You found or you faced a challenge as a KV teacher before the students of Kehelgaon. What type of challenge you faced in teaching field as a teacher? You see, sir, this is a very question which obviously needs more elaborate, but I'll be precise and I'll just put some points over it. Obviously, to be very honest, we cannot ignore pandemic, sir, because pandemic had impacted all over world. Definitely it had impacted education system as well. Definitely it had impacted students learning, teaching process also. When I joined, there were students who just came out of that COVID impact, so online teaching was in air, and everything has a positive and negative aspect, sir. तो उसका कुछ consequence हो जाता है. बच्चे
भी कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, और मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ा टीचिंग में। वो क्या था, वो ये था कि बच्चे क्योंकि ऑनलाइन मोड से पढ़ाई कर रहे थे, तो देयर इज अ काइंड ऑफ नॉट ट्रस्ट डेफिसिट थिंग, बट कहीं ना कहीं मैं बच्चों से कनेक्ट कर पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर पा रहा था। उसका रीज़न सबसे बड़ा था कि आप फेस टू फेस तो देख नहीं रहे हैं बच्चों को, तो उनकी साइकोलॉजी को, उनकी बॉडी एक्टिविटी को तो रीड नहीं कर पा रहे हैं। यू कैन नॉट in front of them ask questions and judge or analyze their views, ठीक है। आप ऑनलाइन मोड में हैं, तो आप लैपटॉप से या मोबाइल से क्लासेस कर रहे हैं। ये एकदम स्टार्टिंग की मैं बात बता रहा हूँ, जब आया था वहाँ पे। कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद वो ऑनलाइन मोड खत्म हो गया। हम सब जानते हैं पैंडेमिक ओवर हुआ, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगी और स्कूलों को खोल दिया गया, बच्चों लोग फिर आने लगे, ठीक है। वो एक हिचक थी सर बच्चों के भी अंदर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे अंदर भी। क्यों? क्योंकि वो जो ऑनलाइन मोड से आ रहे थे तो उनको बहुत टाइम लग रहा था फिर उस माहौल में, क्लासरूम टीचिंग के माहौल में अपने आप को फिट करने के लिए। ये तो हो गई पैंडेमिक की बात। इसके साथ साथ जो नॉर्मल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि टीचिंग में कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा या कौन सी चैलेंजों का सामना करना पड़ा। एज मैं हायर क्लास को टीच करता था, एज आई वॉज अ पीजीटी टीचर, तो 9th ऑनवर्ड्स या 11th 12th के टीचर स्टूडेंट्स को मैं इंटरेक्ट कर पाता था। तो एक बहुत बड़ा सा गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होल है, कि आप भी एग्री करेंगे और जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं वो भी मानेंगे इस चीज़ को। गैप ये है कि जो आज सारी चीज़ें चल रही हैं, एनईपी की बात हो रही है, नए नए डेवलपमेंट चेंजेस की बात कर रही है सरकार भी, जो 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को हम डील कर रहे हैं, क्या उनका मानसिक स्तर, क्या उनकी मेंटल एबिलिटी, क्या उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्या उनकी एनालिटिकल थिंकिंग उस स्तर की है? नहीं है। क्या हमने उनको प्रिपेयर किया है उस तरह से? नहीं किया है। और ये किसी एक स्कूल की बात नहीं है, ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बहुत जनरलाइज है सर। आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हमसे, ठीक है। तो एक 8वीं का बच्चा जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 8वीं में है, तो 8वीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको लिखना, उसको पढ़ना, उसके मैथमेटिकल स्किल उसको आने चाहिए, लेकिन वो क्या आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसको पास कर देना है, 8वीं के तहत होगा, जैसे भी हो उसको रोकना नहीं है, फेल नहीं करना है। तो क्या होगा? डेफिनेटली 12th में आके वो हिचकिचाएगा सर, उसको बड़ा बड़ा लोड मिल रहा है, बड़े बड़े टॉपिक्स मिल रहे हैं डील करने के। कट टू शॉर्ट, मैं ब्रीफली से इतना बोल रहा हूँ कि देयर इज अ गैप ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचर अपने आप को नीचे लाना चाह रहे हैं। होल सिस्टम, What is the system? education system which we have What is education? Who created initiative? we have created. Yes. We have created. And how we can fill up ourselves? We have to change, sir. We have to change. What type of change? For example, we have to change. Yes, what? Very good question. For example, let me just one. Give me just 1 minute. For example, if I'm teaching, let's say, nationalism topic. No, I am just going in class and giving a lecture on whole nationalism, French Revolution, blah blah, etc., etc. And the boy or the girl sitting, he doesn't know what is nationalism is all about. तो कहने का मतलब मेरा यह है कि मैं उसको राष्ट्रवाद पढ़ा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, और राष्ट्रवाद पे बड़ी बड़ी भाषण दे रहा हूँ, किताब जो एनसीईआरटी किताब में है, और वो बच्चा या बच्ची उसको राष्ट्रवाद का मतलब ही नहीं पता। तो कहने का मतलब मुझे तो अपना लोअर पहले स्टैंडर्ड लो करना पड़ेगा, मुझे पहले उसको बताना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्र कहाँ से आया, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, तुमको राष्ट्रवाद लिखना भी आता है कि नहीं आता है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस तो एज अ टीचर आपको करने पड़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जो हमारा करिकुलम बनाया जाता है सर, जो हमारा सिलेबस बनाया जाता है, जो सीबीएसई बनाती है या अदर इंस्टीट्यूशन जो हमारे देश में वो बनाए जाते हैं, वो जो बनाया जा रहा है, जो भी उसमें विद्वान लोग हैं बनाने में, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम जिस लेवल के बच्चों को के लिए ये बना रहे हैं, क्या हम उनको उस तरह का प्यार कर पा रहे हैं। वहाँ भी बदलाव की जरूरत है सर, मुझे लगता है, ठीक है। हमारे ट्रेनिंग में भी बदलाव की जरूरत है। हमारा जो बीएड का ट्रेनिंग कराया जाता है वो भी बहुत थ्योरेटिकल है सर। तो मुझे लगता है, अगर मैं कंक्लूड थोड़ा सा इस लाइन से करूं, कि थ्योरी के बजाय हमें बहुत प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बीएड का ट्रेनिंग को मानते हैं कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है, बीएड अगर है आप हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, ऐसा शिक्षाविदों का मानना है। पर क्या बीएड में सिर्फ आप थ्योरी करा रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल कहाँ है? आप प्रैक्टिकल कराइए ना, उसमें बच्चों को पढ़वाइए, जाके बच्चों से एनालाइज करवाइए, वहाँ पे कुछ टीचर बैठेंगे, वो भी एनालाइज करेंगे कि क्या जो ये शिक्षक है ये अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है बच्चों को, है ना। उस पर भी आप पॉइंट रखिए।
तो ये बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस हैं सर, जो कि सरकार या उससे शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं जो हैं वो कर सकती हैं, और हम अपने पर्सनल लेवल पे भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो चेंजेस तो ज़रूरी हैं सर, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, और ये हम ही से शुरुआत होगी, एज महात्मा गांधी हैज पॉपुलरली सेड, यू नो, चेंज, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, within yourself. within yourself first, and Then it will go on. then go on. Finally, you can say, sir, what is the how we can bring a revolution and kranti on education system in our country. The two lines में खत्म. क्रांति एक दिन में नहीं आती है सर। Okay. क्रांति फॉर दैट मैटर भारत में एक ही बार हुई थी 1857 की क्रांति। तो भारत का थोड़ा सा कल्चर, मैं थोड़ा इतिहास का हूँ तो थोड़ा सा इसलिए आपको इस तरह की बातें सुनने को मिल जाएंगी, मेरे से बहुत नेचुरल है। और तो कांग्रेस वाला तो बोलते रहते हम तो 1885 में शुरू किए थे क्रांति, हम तो देश को आजादी लेके आ गए। हाँ, तो अब क्रांति नाम बोल रहे क्रांति लेके आए। वो जो क्रांति हुई थी एक्चुअली रियल क्रांति हुआ है 1857 सिपाही मोदी था। लेकिन नाउ इन इंडियन क्रांति का हमारे साथ बहुत वैसा रिश्ता है। जेपी क्रांति भी बिहार में हुई थी, जो इंदिरा गांधी सरकार प्रकाश नारायण की क्रांति भी थी। तो क्रांति तो टोटल कांग्रेस गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट इज परसेप्शन स्टार्टेड, न्यू परसेप्शन। तो क्रांति के लिए बदलाव, जब तक बदलाव नहीं होगा तो क्रांति नहीं होगी। द क्रांति कॉन्सेप्ट स्टार्टेड फ्रॉम बिहार ओनली। यस, जैसे अखंड भारत, नो बिफोर दैट आल्सो द एंशिएंट टाइम। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर रहा हूँ कि क्रांति और बदलाव ये दोनों बहुत जुड़ा हुआ है इतिहास में। तो हम पढ़ाते भी हैं कि कोई भी क्रांति क्यों है, रिवॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि बदलाव हो गया। तो सर बदलाव जैसे होगा क्रांति अपने आप आ जाएगी, और बदलाव डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा। मैं एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान भी हूँ और टीचर भी हूँ ऑब्वियसली। तो our motto is the same, sir. Definitely all the krantikars, all the revolutionary, there is strong motto to change and bring the reformation. Yes. They have a positive hope. Yes. Despite the pessimistic, they are optimistic. No doubt at all. So what I said is on the conversation between Mr. Rajesh Tiwari and me, there is today in the tea time talk, we came to the conclusion that basically the change should be started within us. The feeling should become, the emotion should come to change our country, develop our generation, the upcoming generation. It's the hands of the teachers, system, government, politics. Apart from that, people. देखिए सर, मेरा मानना है लास्टली यही कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, बदलाव मेरे लिए बस इतना ही है। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उसको ईमानदारी से करें। आप अपने स्तर का बदलाव उसमें जरूर लाएं। जैसे अगर आप शिक्षक हैं, आपको अगर लगता है कि मैं ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा के कुछ बदलाव ला सकता हूँ, आप बिल्कुल करें। अगर आप किसान हैं, आपको लगता है कि मैं खेती ऐसे नहीं ऐसे करके बदलाव ला सकता हूँ, आप वो भी करें। तो बदलाव यही है। मुझे लगता है कि यही अगर प्रयास हर इंसान हम लोग करेंगे तो कलेक्टिवली जो है वो बदलाव कहीं ना कहीं दिखेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एनीवे सर, डेफिनेटली आवर मेन मोटो टू चेंज will be keep continue every time one guest in the street time talk on education system or kranti education system in our country. So we will meet you with another guest another time. That's till then, bye bye. Thank you sir. Thank you.